Yes, so yesterday we were talking about the molecular hydrides or covalent hydrides, in which we saw electron deficient hydrides. I told you those hydrides in which the electrons are not sufficient in order to write a Lewis dot structure, then we can call them as nothing but your electron deficient compounds or electron deficient hydrides. And I also told you that in such type of electron deficient compounds, what will happen is they will act as Lewis acids. That means they have this tendency in order to accept a lone pair of electrons. Is that okay, sir? Give me a moment. So what did I say now, sir? I just told you that if we are having our hydrogen, okay, and if it is reacting with any element such that it is sharing its electrons, such that what is it doing? It is trying to share its electrons. Then in that case, what we can say is, we can say that the element will form different types of hydrides. And what are those different types of hydrides? It can form electron deficient, electron rich, or as well as your electron precise compounds it can form. Okay, right. So yesterday we had a look at our electron deficient compounds. Today we will have a look at our electron rich or as well as your electron precise compounds. So you see, sir, electron precise means what? Exactly the central atom is going to have octet and all the electrons will be shared. In such a case, there is no extra electron left out, or there is no need of extra electrons to fulfill the octet. In such a case, we will call them as nothing but our electron precise compounds. You see, we have carbon. Carbon has got 4 valence electrons. Now, if a hydrogen comes up and shares 1 electron over here, one more hydrogen comes up and shares an electron, another hydrogen comes up and shares an electron, another hydrogen comes up and shares an electron. Now carbon has fulfilled its octet, hydrogen has fulfilled its duplet, all the hydrogens have fulfilled its duplet, and the structure so formed is exactly having enough number of electrons to write the Lewis dot structure properly. No extra electrons, no lesser electrons. Such compounds we will call them as nothing but our electron precise compounds, and these compounds are highly covalent in nature. They will have very nice covalent character. These are beautiful covalent compounds. Okay, and so let us see what is given in our textbook. Electron precise compounds have the required number of electrons to write their conventional Lewis structures. All elements of group 14 will form your electron precise compounds. Okay, 14th group के जितने भी elements हैं, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो सिलिकॉन हो, राइट, तो ये सारे के सारे जो हैं हमारा अच्छा सा कोवेलेंट वाला इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड बनाते हैं, जिनका शेप टेट्राहेड्रल होगा. मस्त sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो शेप क्या हो जाएगा हम लोगों का? टेट्राहेड्रल हो जाएगा. चलिए, बहुत अच्छा बात. अब 13th ग्रुप को देख लिए, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स बना रहे थे. 14th ग्रुप में चले गए जहां पे वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स बना रहे थे. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं 15, 16, 17 पे चले जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे. हम लोग देखेंगे कि ये लोग जो है ना सर, हम लोगों का इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स बनाना. So let us have a look. So electron rich compounds मतलब rich hydrides मतलब ये कैसे होते हैं? Say for example a 15 group element like nitrogen
is having 5 valence electrons. Now 3 of the hydrogens have come in order to share 1 electron each. अब आप लोगों को लग रहा होगा सर 3 से ज्यादा 5 हाइड्रोजन क्यों नहीं आ गया? 5 हाइड्रोजन आ जाएगा तो छोटा सा नाइट्रोजन है और ऊपर से उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सो ऑब्वियसली वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग नहीं करेगा। सो यहाँ पे जो है ना सर, मेरा नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल हो चुका है, हाइड्रोजन का ट्रिपलेट फुलफिल हो चुका है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, 1 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स इस तरीके के जो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, दे will act as Lewis bases. They will act as Lewis bases. Okay, right. So let us see what our textbook says about that. Electron rich hydrides have excess electrons which are present as lone pairs. Elements of group 15 to 17 form such compounds. NH3 has got 1 lone pair, but the same thing if I take oxygen, then obvious सा बात है सर, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत पड़ेगा, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के फॉर्म में, 2 लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। सो 15 ग्रुप एलिमेंट्स के पास 1 लोन पेयर बच जाएगा, 16th के पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे, और 17th ग्रुप एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल फ्लोरीन ही ले लो आप लोग, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट, मतलब अभी कितने कितने लोन पेयर बच गए? 3 लोन पेयर बच गए आपके फ्लोरीन के पास। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। What do you expect from the behavior of such compounds? हम लोगों ने already बता दिया सर, they will behave as Lewis bases because they can donate a lone pair of electron to others. The presence of lone pair on highly electronegative atoms like nitrogen, oxygen, or fluorine in hydrides result in hydrogen bond formation between the molecules. This leads to the association of molecules. हम लोगों को पता है when more than one molecule associate in order to form dimer, trimer like this, the association is possible in these compounds especially due to your hydrogen bonding, which brings the molecules more together, more closer to one another. I hope आप लोगों को ये समझ में आए। कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें? No sir. ओके, वेरी गुड। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो हम लोग अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम नंबर 9.2 है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। Would you expect the hydrides of nitrogen, oxygen, and fluorine to have lower boiling points than the hydrides of their subsequent group members? Give reasons. बताइए। Obviously, they are going to have higher melting and boiling points, especially boiling points, because इनके पास intermolecular hydrogen bonding है. So, due to the high electronegativity of nitrogen, oxygen, and fluorine, they have higher boiling points because they have high intermolecular force of attraction, that is stronger intermolecular force of attraction, that is your hydrogen bonding. चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड एज वेल एज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मेटेलिक या फिर नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स जिनको बोलते हैं। सो इनको हम लोग बोलेंगे मेटेलिक हाइड्राइड्स or non-stoichiometric hydrides. Now metallic hydrides, because these are actually transition metal hydrides, इनको हम लोग interstitial hydrides भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? Interstitial hydrides भी बोल सकते हैं। देखिए, all the 3 words are trying to prove the same thing. Number 1, non-stoichiometric hydrides means यहाँ पे stoichiometry, the formula of the compound is going to get disturbed. Interstitial hydrides means why is it going to get disturbed? Because your elements have interstitial spaces where some other impurities or your hydrogen or anything can go and occupy. So that is why we are calling them as interstitial hydrides or non-stoichiometric hydrides or metallic hydrides, or you can call them as transition metal hydrides. You can call any of these. Okay, right, moving on. These are formed by many D block and F block elements, especially transition and inner transition elements. However, the metals of group 7, 8 and 9 do not form hydrides. ध्यान दीजिए, the metals of group 7, group 8 and group 9. Group 7 में कौन आ जाएगा हम लोगों का? मैंगनीज का पूरा ग्रुप आ जाएगा वहां पे, yes or no sir? और yes. ग्रुप 8 में क्या आ जाएगा हम लोगों का?
मैंगनीज के बाद आयरन। आयरन, तो आयरन का ग्रुप आ जाएगा हमारे पास। चलिए बहुत अच्छा बात। तो मैंगनीज एंड देन वी आर हैविंग आयरन, ओके, एंड देन व्हाट एल्स सर? कोबाल्ट। Cobalt. So especially these groups which we are having, they do not form hydrides. Let us understand what is happening. Even from group 6, only chromium forms hydride. Even from group 6, what will happen is only your chromium is forming your hydride. Only chromium hydride will be formed. Others, they cannot form hydrides. Now, why is this happening? So these hydrides conduct heat and electricity, though not as efficiently as their parent metals do. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट मेटल्स के पास बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है अवेलेबल हो रहे हैं, बट जैसे ही ये एक हाइड्राइड बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयरिंग में चले जाएंगे आपके हाइड्रोजन के साथ, एंड ऑब्वियसली जो है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम होगा एंड वो उतना ज्यादा कंडक्ट नहीं करेंगे। अनलाइक सेलाइन हाइड्राइड्स, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। They are almost always non-stoichiometric. Saline hydrates हमेशा stoichiometric होते हैं, proper stoichiometry maintain होता है, बट यहाँ पे जो है ये हमेशा जो है non-stoichiometric रहेंगे। In such hydrides, law of constant composition does not hold good. तो अगर हम लोगों को बोला in which among the following does not follow law of constant composition, say for example, then it will be your interstitial hydrides, or that is going to be your nothing but non-stoichiometric hydrides. Now moving a little ahead, we are seeing few examples like lanthanum hydride, ubetium hydride, titanium hydride, zirconium hydride, vanadium hydride, nickel hydride, palladium hydride, and all of these places your hydrogen, okay, is not having a proper integer over here. In such hydrides, the law of constant composition will not hold good. आगे बढ़ते हैं. Earlier, it was thought that in these hydrides, hydrogen occupies the interstices in the metal lattice, producing distortion without any change in this its type. तो इनिशियल में हम लोग को क्या लग रहा था? हम लोगों को लग रहा था क्रिस्टल लैटिस में, से फॉर एग्जांपल लैंथनम का हाइड्राइड है, लैंथनम ऑक्युपाई किया अलग 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 पोजीशंस, उसके बाद जो साइट्स हम लोगों को मिला, जो वैकेंट स्पेसेस मिले, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्युपाई कर रहा है करके हम लोग सोच रहे थे. दैट वाज आवर अर्लियर बिलीफ, बट consequently they were termed as interstitial hydrides. तो इसीलिए इनका नाम जो है interstitial hydrides दिया गया, क्योंकि हमें लगा कि हाइड्रोजन जो है interstitial spots को ऑक्युपाई कर रहा है. However, recent studies have shown that except for hydrides of nickel, palladium, cerium, and actinium, other hydrides of this class have lattice different from that of the parent metal. That means what? हमें जो लग रहा था जो मेटल लैटिस जैसा का वैसा है वही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन जो है जाके अंदर लैटिस पॉइंट्स में स्पेस ऑक्युपाई करेगा करके हम लोगों को लग रहा था, लेकिन वो गलत है. The lattice itself is changing. The crystal lattice itself is changing. मतलब वो जब हाइड्राइड बनाएंगे मेटल और हाइड्राइड, जब हाइड्रोजन के साथ जब वो हाइड्राइड एक बना रहे हैं, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस और पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जा रहा है. तो ये जो इंटरस्टेशियल हाइड्राइड जो हम लोग नाम दिए हैं, राइट, ये सोच के कि हाइड्रोजन इंटरस्टेशियल साइट्स ऑक्युपाई कर रहा है, दैट इज नॉट ट्रू, राइट. चलिए, the property of absorption of hydrogen on transition metals is wisely used in catalytic reduction or hydrogenation reaction for the preparation of large number of compounds. ये हम लोगों को already पता है, इसमें कोई problem नहीं है. Some of the metals like palladium, platinum can accommodate a very large volume of hydrogen and therefore can be used as its storage media. This property has high potential for hydrogen storage and as a source of energy. Now tell me sir, हम लोग बोले already कि hydrogen has got a high calorific value, and we already told that hydrogen can be a very good fuel. It is eco-friendly and other things. We talked about so many things. Now tell me, if that is so true and we are having so much of oxygen and we have so much of hydrogen around us, okay, in the form of water or in the form any other form, then why haven't we switched to hydrogen economy till today?
the biggest problem for that is this transportation of hydrogen. Hydrogen is a gas. Now, if you liquefy it, okay, it will become a liquid, but at a very low temperature, you have to transport it. If you're taking it as a gas, then it will occupy large volume even for less quantity. Now, how are we going to transport it? So for that, we got a solution over here. That is, अगर हम लोग प्लैटिनम या पैलेडियम के प्लेट्स के ऊपर अगर हम लोग हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवा देते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है एब्जॉर्ब हो सकता है। अब देखो, तुम एक स्पेशलाइज्ड ट्रक बनाते हो, वो ट्रक का जो पीछे का पार्ट है, उसमें जो बहुत सारे प्लैटिनम या तुम्हारे जो क्या बोलते हैं पैलेडियम के प्लेट्स रहेंगे, एकदम पतले पतले प्लेट्स, दे आर थाउजेंड्स ऑफ प्लेट्स लाइक दिस, वाइड एंड लार्ज। तो सोचो कितना हाइड्रोजन आप लोग इसमें एब्जॉर्ब करवा के एक जगह से दूसरे जगह बिना कोई तकलीफ का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यस और नो? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वे that we have introduced, or which we have come to know in order to transport our hydrogen. Although, sir, right? Understood. Now, example, yeah, problem number 9.3. Let us have a look. What are we trying to see in problem number 9.3? Can phosphorus with outer electronic configuration 3s2 3p3 form pH5? Now they are asking, is it possible for phosphorus to form pH5? अब सबसे पहले मुझे एक बात बताइए सर, हम लोगों का फॉस्फोरस के पास क्या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? ऑब्वियसली है। 3s2 3p3, s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा d में, मतलब 3s1 3p3 3d1। तो अब 5 हाइड्रोजन आके ऑब्वियसली वहां पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं और pH5 बना सकते हैं। बट क्या ये रियली पॉसिबल है? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल्दो फॉस्फोरस एग्जिबिट्स +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट कैन नॉट फॉर्म pH5. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। देखिए, हम लोग PCl5 PF5 देख रहे हैं बिकॉज chlorine and fluorine are much highly electronegative, so electronegative that phosphorus को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन हाइड्रोजन इज नॉट दैट मच electronegative. So you see what is happening. Besides some other considerations, high enthalpy value of dihydrogen and high electron gain enthalpy value of hydrogen do not favor to exhibit the highest oxidation state of phosphorus, and subsequently the formation of pH5 and consequently the formation of pH5. That means clearly हम लोगों को बोल रहा है, एनर्जी कंसिडरेशंस को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन ना ही इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना ही उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतना लार्ज है, और उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतना लार्ज है कि इस रिएक्शन का एनर्जेटिक्स को सेटिस्फाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या आप लोगों को याद आ रहा है, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्गर है। तो ऑब्वियसली जो है एनर्जी वाइज अगर हम लोग देखेंगे, थर्मोडायनेमिकली अगर हम लोग देखेंगे, the formation of pH5 is not at all possible. I hope it is clear to each and everyone. Right, now let's move ahead and let's try to understand water. Now before I move on to our water, first tell me sir, first try to tell me over here, did you people really understand all of these? Yes, sir. Okay, so now we will go for water, which is one of the most important chemicals for the life to exist on this earth. देखो, वाटर एक ऐसा चीज है, हम लोग इतना यूज करते हैं कि अब जब वाटर को हम लोग केमिकल बोलते हैं तो हम लोगों को अजीब लगता है, because for us water is a need, it is not a chemical actually, right? So but water, which is a vital need for human beings and other organisms to survive, so let us study its properties and its existence. First, though water is having a lower molecular mass, only 18 grams per mole, yet it exists in liquid phase. The reason for this is hydrogen bonding. Now you think, indirectly agar hum log bolenge, don't you think hydrogen bonding is the most important reason due to which life has been supported on earth? If H2O would have existed in the form of gas,
अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता देन ना हमारे जो पहले पहले यूनिमॉलिक्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो सी क्रिएचर्स बने थे वो ना बनते, ना ही इवोल्यूशन होता, ना ही हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इतने सारे बनते, right? So water being in this aqueous phase, that means in your liquid phase, is a big gift by mother nature to us. Okay, right, moving ahead. Water, a major part of the living organisms is made up of water. Obviously 70% of our body is also made up of water. Human body has about 65% and some plants as much as 95% water. It is a crucial compound for the survival of all forms of life. It is a solvent of great importance. The distribution of water over the earth's surface is not uniform. The estimated world water supply they have given us not required. Physical properties of water. First thing, water exists in liquid phase. I told you already, the major contribution for this is due to the hydrogen bonding. Now have a look. It is a colorless and tasteless liquid. Its physical properties are given along with the physical properties of heavy water. Now, this is something which we have to see because हम लोगों को already पता है sir, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों का प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है. ओके, बस वो वेरी किस में करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन में वेरी करते हैं, क्योंकि उनका एंथैल्पीज जो है वेरी करता है. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, molecular mass deuterium oxide का ज्यादा है. Deuterium oxide is having a molecular mass of 20.02. Water is having a molecular mass of 18. Okay, 18 इसको कंसिडर कर सकते हैं, उसको 20 कंसिडर कर सकते हैं. मेल्टिंग पॉइंट ड्यूटेरियम का ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ड्यूटेरियम का ज्यादा है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो भी उसी का ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ज्यादा इजीली आप लोगों का D2O ही बन सकता है. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी आपका D2O का ज्यादा है, राइट? सो दैट मींस इनडायरेक्टली जो हम लोग बोल रहे हैं ड्यूटेरियम के लिए जो याद रखे थे, सेम चीज हम लोग हेवी वाटर के लिए भी याद रख सकते हैं. एवरी सिंगल फिजिकल प्रॉपर्टी ओवर देयर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी आप कंसीडर करो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एवरीथिंग इज हायर फॉर ड्यूटेरियम एंड एज वेल एज ड्यूटेरियम ऑक्साइड as compared with that of your hydrogen and water. Is this clear? No problem with this? Yes, sir. Yes. Okay, so let us move ahead. Let us understand few properties of our water. Yes, the unusual properties of water in the condensed phase, that is your liquid and the solid state, are due to the presence of extensive hydrogen bonding between water molecules. See sir, we all know this, that water when it is frozen, it forms a solid, that is ice, and ice floats on water. Though it is of the same substance, but ice floats on water. Though हम लोग बोलेंगे एक reason ये है कि sir, ice has got lesser density than that of water. Good, but the reason which you have to write, being a 12th class or 11th class student, now what the reason you will be writing is, sir, though we say that it is having lesser density, what is the reason for lesser density? The reason for lesser density is hydrogen bonding. When hydrogen bonding happens, ओके, OH ये मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के पास आते हैं ना सर, तभी क्या होता है, ये एक वॉइड शेप का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस टाइप का जो है वो एक वॉइड शेप का वो एक वॉइड बनाते हैं. जब वो सॉलिडिफाई होते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के एकदम नजदीक नहीं आ जाता है, वो ऐसे आते हैं कि बीच में जो है वो होल्स या वॉइड्स छोड़ते हैं. इन होल्स या वॉइड्स के वजह से जो है आइस का डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाता है, एंड हेंस आइस सेल्स ऑन वाटर और फ्लोट्स ऑन वाटर. डू वी अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes. So this leads to high freezing point, high boiling point, high heat of vaporization, and high heat of fusion in comparison to that of your hydrogen sulfide or hydrogen selenium. Now, why is this? Because hydrogen bonding है especially water में, H2S में और H2SC में वो possible नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. In comparison to other liquids, water has higher specific heat, thermal conductivity, surface tension, dipole moment, and dielectric constant. These properties allow water to play a key role in the biosphere. देखिए सर, वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर को कितने सारे प्रॉपर्टीज इनकलकेट करता है, कितने सारे प्रॉपर्टीज इसको देता है. दैट इज इसका हाई स्पेसिफिक हीट हो, या फिर आपका थर्मल कंडक्टिविटी हो, या फिर सरफेस टेंशन हो, डाइपोल मूवमेंट हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो. All of these makes water a completely different liquid which contributes for
a higher thing as compared to that of your other liquids. Next, the high heat of vaporization and heat capacity are responsible for moderation of the climate and body temperature of the living beings. This is one of the most important thing. This will help us in order to moderate both your climate and as well as your body temperature. It is an excellent solvent for transportation of ions and molecules required for plants and animal metabolism. Due to hydrogen bonding with polar molecules, even covalent compounds like alcohols and carbohydrates dissolve in water. Now, what is happening? We know that water is a non-polar solvent. Yes, but have a look over here. Due to hydrogen bonding, okay, with polar molecules, even covalent compounds like alcohol and carbohydrate will dissolve in water. देखिए, अगर हम लोग देखें अल्कोहल या फिर कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों के दोनों कोवलेंट कंपाउंड्स हैं. दैट मींस ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी एक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, वो तो नॉन पोलर के अंडर आते हैं. बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे पॉसिबल करता है. उन्हें डिसॉल्व करने का कैपेसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस हैं, उसके वजह से जो है आपका बाकी एलिमेंट्स जो है वो डिसॉल्व हो पा रहे हैं आप लोगों के वाटर में. क्या ये क्लियर है सर? Yes, sir. यस. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. यू ऑल नो द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, दैट इट इज एंगुलर, दैट इज बेंट, दैट इज वी शेप, we can say, right? Arrangement of electrons. First, oxygen having 6 electrons in its valence shell, okay, will have 2 bond pairs and it is going to have 2 lone pairs. Now these 2 lone pairs and the bond pairs will exist with an angle of 104.5 degrees, okay, 104.5 degrees, and the bond length is going to be approximately 95.7 picometer. The bond length is going to be approximately 95.7 picometer. Now we know that the molecule of water is bent shaped. It is having 2 lone pairs. Now why is it in a bent shape? एक्चुअल में इसका मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो वो टेट्राहेड्रल ही है. बट क्योंकि जब स्ट्रक्चर बताते हैं लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए ये मॉलिक्यूल को हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं? बेंट बोल रहे हैं. हमेशा याद रखेंगे सर, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेस्पर थ्योरी से हमेशा पता चल जाएगा हम लोग. वेस्पर थ्योरी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स देख के हम लोग उसको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बोल दोगे. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ट्राइगोनल प्लानर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, यही शेप्स में रहेगा. द ओनली थिंग इज शेप का नाम अलग अलग होगा, क्योंकि वो जो अरेंजमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स उनमें से जो लोन पेयर्स है उनको हम लोग शेप में कंसिडर नहीं करेंगे. इसीलिए शेप बेंट आएगा, सीसॉ शेप आएगा या कुछ भी आएगा, लेकिन अरेंजमेंट जो है एक पर्टिकुलर वे में ही होगा, जो हम लोग का स्टैंडर्ड वेज है उसी में होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर. तो अगर रियल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर किसी ने अगर आप लोगों को पूछा आज के डेट पे, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को ऐसे ड्रॉ करना चाहिए. पहले आप लोगों को एक एपेक्स, मतलब आप लोगों को हेड, टेट्राहेड्रल का टॉप पार्ट में एक लोन पेयर को ड्रॉ करना चाहिए. टेट्राहेड्रल के एक साइड में एक लोन पेयर को ड्रॉ करना चाहिए और दोनों हाइड्रोजन को आपको साइड्स में ऐसे ड्रॉ करना चाहिए. कहां पे ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन आपका बीच में. ये मॉलिक्यूल आप लोग ढंग से देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक टेट्राहेड्रॉन दिखेगा. ये है आपका टेट्राहेड्रॉन. बट शेप क्या बोलते हैं हम लोग? बेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोगों को सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करना है, लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना है. क्या ये क्लियर है? हाँ सर. Okay, now you see, in the gas phase, water is a bent molecule with hydrogen with bond angle 104.5 and OH bond length to be 95.7 picometer. It is a highly polar molecule. Its orbital overlap picture is shown in figure. Okay, we know that. In the liquid phase, water molecules are associated together through hydrogen bonds. Okay, the crystalline form of water is ice.
At atmospheric pressure ice crystallizes in hexagonal form. अगर आप लोगों को याद है, मैं अभी अभी आप लोगों को वो ड्रॉ करके शो कर रहा था, हेक्सागोनल फॉर्म जो है मैं आप लोगों को ड्रॉ करके शो कर रहा था। वाटर मॉलिक्यूल आ रहा था और मैं आप लोगों को बोला कि बीच में वॉइड रहेगा, मैं इरेज कर दिया हूं उसको, राइट। तो उन्हीं वॉइड्स के वजह से, तो देखो, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस crystallizes in the hexagonal form, but at very low temperature it condenses to cubic form. See, at very low temperatures it will go for cubic form, otherwise it is going to have hexagonal form. Now this is a place where you can get a question. Okay, water crystallizes in cubic form at very low temperatures, and it is going to exist in hexagonal form, or it is going to solidify in hexagonal form at just freezing point temperature, at a little higher temperatures. Okay, right. Density of ice is less than that of water, therefore an ice cube floats on water. In winter season ice formed on the surface of lake, ये एक इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन है सर। मदर नेचर कितना ब्यूटीफुल, जो आइस बन जाता है हमारा ओशन में तो नहीं बनता है, आइस जो बन जाता है हम लोग का पॉन्ड के ऊपर, कुछ कुछ रिवर्स के ऊपर एक लेयर ऑफ आइस बन जाता है, दैट प्रोटेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ फ्रॉम extreme cold temperatures. हम लोगों को पता है in the Arctic and Antarctic regions there are whales, there are dolphins, there are penguins, there are walrus, there are all these seals and other creatures which are still present. They live at such extreme cold temperatures. Now how is that possible? Because these ice sheets which are formed, frozen lakes which are there, frozen rivers which are there, they are forming an insulation. They are keeping the water warm as compared to that of your atmospheric टेम्परेचर्स, जिसके वजह से जो है ये इंसुलेशन की वजह से अंदर पानी जो है थोड़ा बहुत गर्म रहता है बाहर के टेम्परेचर के कंपेयर में, एंड हेंस वो फ्रीज होने से बचते हैं, और वो एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के तौर पे हमें काम देता है। एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर सकता है, थ्राइव कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आइस पे फोकस करते हैं। I already told you sir what is going to be the structure of ice. मैंने बोला एक H2O जैसे है मेरे पास, राइट, ये हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है, एक और ऑक्सीजन आएगा, इसके दो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इस टाइप का, से फॉर एग्जांपल अब ये डेल्टा नेगेटिव रहेगा, ये इधर अट्रैक्ट करता होगा, राइट, एक और वाटर मॉलिक्यूल आएगा, उसका हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इधर है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, राइट, एक और से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों का ऑक्सीजन आ गया, इसका हाइड्रोजन के साथ इसका डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये इसका डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इस तरीके से आप लोगों का एक हेक्सागोनल शेप बनता है, राइट, जिसके वजह से तुम चाह के भी ना जब फ्रीजिंग होता है तुम इसको और नजदीक नहीं ला सकते हो, आइस को और डेंसर नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके जब मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एक वॉइड बनाना ही है वहां पे, दे कैन नॉट कम इवन क्लोजर टू वन अनदर, वो अनस्टेबल हो जाता है, राइट। सो हैव अ लुक, ice has a highly ordered three-dimensional hydrogen bonded structure as shown in the figure. Examination of ice crystals with X-ray shows that each oxygen atom is surrounded tetrahedrally by 4 oxygen atoms in a distance of 276 picometers. Now, what is important over here? What a difficult paper can come up? How many oxygen atoms are surrounding one oxygen atom in ice? That is, when water is getting frozen, each hydrogen atom is surrounded by how many other oxygen atoms? Each oxygen atom is surrounded by how many other oxygen atoms, and in what shape? Then in the tetrahedral shape, and 4 other oxygen atoms will be surrounding each oxygen atom. Is that clear, sir? Yes, sir. Okay. Hydrogen bonding gives ice a rather open type structure with wide holes. These holes can hold some other molecules of appropriate size interstitially. यही तो रीजन है, इसी के वजह से तो हम लोग आइस गोला बना पा रहे हैं या फिर आइसक्रीम्स बना पा रहे हैं। Sugar molecules which are getting dissolved in water now can stay in the interstitial voids of the आइस क्यूब विच हैज फॉर्म्ड, उसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो है ये जाके ऑक्युपाई करके रह सकते हैं, इसीलिए हम लोग इतने सारे फ्रोजन चीजें भी बना पा रहे हैं। क्या ये क्लियर है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? Yes. नाउ वी विल गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर।
Now we will go for the chemical properties of water. Now we all know one thing, sir. Water, H2O, which can release both H plus and as well as OH minus. Don't you think that this water molecule has amphoteric nature? In few cases, it can act as an acid. In few cases, it can still act as a base. So obviously, it can show amphoteric behavior. Do you people agree with this? Yes. Yes. So, sir, amphoteric nature, it can act as an acid as well as a base. Now, here there is something important to remember. अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, कोई भी एसिड लेते हैं, उसके प्रेजेंस में हमारा जो वाटर है वो खुद एक बेस के जैसा रिएक्ट हो जाएगा, मतलब एक बेस के जैसा रिएक्ट करेगा। बस वही अगर आप लोग एक बेस लेते हैं, ये खुद एक एसिड के जैसा रिएक्ट करेगा। राइट, चलिए देखते हैं। इन द ब्रॉन्स्टेड सेंस अगर हम लोग देखें, इट एक्ट्स एज एन एसिड विद NH3 एंड अ बेस विद H2S। चलिए, ब्रॉन्स्टेड सेंस बोल रहा है, क्या हमें पता है व्हाट इज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड? Anything which is having the capacity to release H plus is called as an acid. Anything which has the capacity to accept H plus is called as a base. तो आप लोग खुद बताइए सर, H2O जो है मेरा, ये जब एक एमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है? H2O एक H प्लस डोनेट कर देता है एमोनिया को टू फॉर्म NH4 प्लस, और वो खुद क्या बन जाता है? OH माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का H2O कैसे रिएक्ट किया? एज H प्लस डोनर. So H plus donor means, can't I call it as a Bronsted acid? Yes or no? Anything which has the capacity to release a H plus, we can call it as nothing but a Bronsted acid. So it is acting as a Bronsted acid with your NH3. Whereas the same thing if you are bringing up, your H2S. So let us take H2O plus H2S. Immediately, what is going to be our रिएक्शन ओवर हियर? राइट, ये एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि H2S ये कौन सा हाइड्राइड है? ये 16 ग्रुप का हाइड्राइड है, ये एसिडिक इन नेचर। ओके, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो H2O के कंपेयर में H2S क्या है? थोड़ा ज्यादा एसिडिक है। तो H2S H प्लस रिलीज करेगा, जो कि हमारा H2O ले लेगा और वो बन जाएगा H3O प्लस। मैं कल ही बताया था आप लोगों को, प्रोटॉन जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए वो हमेशा कॉम्बाइंड फॉर्म में रहता है। तो H3O प्लस बन के रहता है और आपका यहाँ पे आ जाएगा HS माइनस, जो कि लिक्विड फेज में रह जाएगा। तो यहीं पे आप लोगों ने दो एग्जांपल देख लिया, एक जहां पे H2O एक एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे जो है H2O आप लोगों का एक ब्रॉन्स्टेड बेस के जैसा रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज ये एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या ये क्लियर है सर? हाँ सर। चलिए, नंबर 2 अब हम लोग देखते हैं सर, रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, सो रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर। रेडॉक्स रिएक्शन से पहले हम लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सेल्फ प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, दैट मींस वाटर खुद ब्रेक होके H3O प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक होता है सर, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में बता दिए, इसीलिए मैं फिर से नहीं बताया। नेक्स्ट, redox reactions involving water. Water can easily be reduced to dihydrogen by highly electropositive elements. ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। Strongly reactive elements like sodium, अगर हम लोग वाटर में डाल देंगे तो वो immediately सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, and along with that हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। True or false sir? हाँ सर। 100% ट्रू है, राइट? सो ऑब्वियसली क्या होगा, विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इट इटसेल्फ विल गेट रिड्यूस्ड। ओके, हाइड्रोजन जो है डाइहाइड्रोजन में रिड्यूस हो जाएगा, thus it is a greater source of dihydrogen gas. तो डाइहाइड्रोजन H2 बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल वाटर हो सकता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी बताएं। इंडस्ट्रियली अगर हम लोग चीपली हाइड्रोजन गैस बनाना चाहते हैं, देन वाटर इज द बेस्ट वे टू डू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Water is oxidized to oxygen during photosynthesis. We know this. Yes, water is oxidized to oxygen. That means water can be reduced to dihydrogen, can be oxidized to oxygen. Both the ways are possible. So we know the reaction of photosynthesis, carbon dioxide will react with water
in order to convert it into your glucose C6H12O6, and along with that it will release water and your oxygen. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, some part of the water is getting oxidized into your dioxygen gas. कोई प्रॉब्लम है सर इसमें? No, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे हम लोग देखेंगे क्या सर, हम लोग का हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस. हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रेकिंग ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रोलिसिस, breaking of something in the presence of water. We will call it as nothing but your hydrolysis. Due to high dielectric constant, it has a very strong hydrating tendency. Hydrating means what? Sir, ये चाहेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल है इसमें ये खुद भी जाके थोड़ा सा अटैच हो जाए, हाइड्रेटेड कंपाउंड्स बना दे, राइट? ये खुद भी जाके उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए. क्यों? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है काफी हाई है, एज वेल एज ये रिएक्टिव है, इसके पास एक लोन पेयर भी है. चलिए देखते हैं. It dissolves many ionic compounds. However, certain covalent and some ionic compounds are hydrolyzed in water. Okay, they don't not only get dissolved, rather they get hydrolyzed. मतलब वाटर जो है उनके साथ अटैच हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ अटैच हो जाएगा. तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, दैट इज योर P4O10. ओके, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड दैट इज योर P4O10 को जब आप लोग वाटर में मिक्स करेंगे, पर सबसे पहले मुझे बताओ सर, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है कि नहीं? हाँ सर. नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये एसिडिक होगा कि? दैट मींस वाटर में जैसे ही डिसॉल्व करेंगे ये पक्का एक एसिड बनाएगा, तो पक्का ये H3PO4 बनाएगा, दैट इज योर फॉस्फोरस एसिड बनाएगा. इन द सेम वे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड दैट इज योर SiCl4 को जब मैं वाटर के साथ ऐड करता हूं तो यहाँ पे हम लोगों का सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा, along with that HCl प्रोड्यूस होगा. Okay, so there are few compounds which are getting hydrolyzed, there are few compounds which are getting simply hydrated. Okay, तो इस टाइप का हम लोगों का जो है कंपाउंड्स बनेंगे. In the same way there is one more reaction, that is your nitride. When it is treated with water we are getting ammonia, and along with that OH minus ions will be released. तो ये जो तीन रिएक्शंस है सर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के. अगर रिएक्शंस के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये तीनों रिएक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाकी सब रिएक्शंस काफी कॉमन रिएक्शंस है जो हम लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है. ये तीनों रिएक्शंस स्पेशली आप लोगों को याद रखना है, जिनमें से P4O10 प्लस वाटर गिविंग टू H3PO4 कोई बड़ा बात नहीं है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, वाटर में डालेंगे इमीडिएटली वो एक एसिड बनाएगा. ये एक सिंपल सा. क्लियर है सर? किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं हाइड्रेट्स. So how water is going to act as in the hydrate formation? Now tell me sir, don't you think hydrate मतलब your water aqua is a very good ligand? मस्त एक लोन पेयर है इसके ऊपर, राइट? ये neither very strong है nor very weak ligand है, ये तो बीच exactly बीच में आता है ये, राइट? So water एक बहुत ही अच्छा सा ligand है. So that is why it can form coordination complexes with many of the compounds. Okay, even ये water of crystallization के फॉर्म में हो या फिर coordination compounds है, ये easily बना सकता है. तो देखिए, from aqueous solutions of many salts can be crystallized as hydrated salts, such as association of water is in different forms. Number one, it can associate in the form of coordinated water. So by now you must be knowing coordinated water means nothing but here water is going to act as a ligand and it is going to form a coordination compound. कोई प्रॉब्लम है सर इसमें? हेक्सा एक्वा क्रोमियम हम लोगों को दिया हुआ है, हेक्सा एक्वा क्रोमेट. ओके, हेक्सा एक्वा क्रोमेट दिया हुआ है हम लोगों को. नेक्स्ट, ये इंटरस्टेशियल साइट्स में जाके इंटरस्टेशियल वाटर भी अटैच हो सकता है, इंटरस्टेशियल कंपाउंड भी बना सकता है. इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट दैट इज .2H2O.
ओके उसी के साथ साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल्स भी बना सकता है। मतलब ये क्या बोल रहा है देखो, ये एक हाइड्रेट जो बनाएगा, वाटर जो डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ हाइड्रेट्स बनाएगा, 3 टाइप्स के बना सकता है। या तो कोऑर्डिनेट हाइड्रेट बना सकता है, दैट मींस कोऑर्डिनेटेड वाटर, वाटर जाके लाइगेंड के जैसा काम करेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। नहीं तो सिंपली ये इंटरस्टेशियल साइट्स में ऑक्युपाई करके इंटरस्टेशियल वाटर बना सकता है। दैट मींस यहाँ पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिंपली इंटरस्टेशियल स्पॉट्स में जाके ये खुद बैठ जाएगा। अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अट्रैक्शन हो सकता है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रेट्स ये बना सकता है। तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर बोल सकते हैं, इंटरस्टेशियल वाटर बोल सकते हैं, और नहीं तो कोऑर्डिनेटेड वाटर बोल सकते हैं। अब आप लोगों को बहुत ही क्लियरली पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मतलब अट्रैक्शन फोर्स विल बी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरस्टेशियल वाटर मतलब इंटरस्टेशियल स्पॉट्स में, वॉइड्स में जाके ये ऑक्युपाई करेगा। एंड कोऑर्डिनेटेड वाटर मतलब वाटर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके अब यहाँ पे हम लोगों को पूछ रहा है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ आर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नाउ सी सर, अगर हम लोग कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को देखेंगे तो आप लोग देखोगे हम लोग तो इसको जनरली लिख देते हैं CuSO4.5H2O करके, लेकिन इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। एक्चुअली ये है टेट्रा एक्वा क्यूपरेट, टेट्रा एक्वा क्यूपरेट सल्फेट, okay, with one water which is attached through hydrogen bond. Okay, that means अगर किसी ने बोला in CuSO4.5H2O how many hydrate coordinated water molecules are present, okay, and how many hydrogen bonded water molecules are present, तो ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन स्टैंड हो सकता है आप लोगों के लिए। सर कोऑर्डिनेटेड वाटर 4 है और सर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल है। क्या ये क्लियर है सर? हाँ सर। वेरी गुड। चलिए बात करते हैं हम लोग हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में। ये भी वाटर का ही प्रॉपर्टीज में आता है, हम लोग बार बार इसके बारे में बात करते हैं। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, whenever we go to some lodges, hotels in order to stay back there, and when we take bath especially, we see that most of the time the soap which we are applying, either it is not giving any lather, or if it is forming a little more lather, it is not getting dissolved, it is not getting washed away when we are trying to bath. Now this particular thing is due to the hardness of water, right? Hard water means the water due to the presence of some impure salts. I'll tell you what salts those are. It cannot form lather with soap or other molecules. Now this type of water which we will call it as nothing but our hard water. Now hard water can be because of 2 types of hardness. There can be either temporary hardness or there can be your permanent hardness. Now let us have a look at what is temporary hardness, what is permanent hardness, how to remove them, what is hard water, soft water, and other things, right? Let us have a look at this. So have a look, sir. Rain water is almost pure, may contain some dissolved gases from the atmosphere. Now tell me, sir, rainwater obviously has to be very, very pure. True. Why true? Because all the evaporated steam, water vapor is getting collected in the clouds and then it is getting condensed. Now clouds में या फिर हमारा water vapor जब ऊपर जाता है, it won't take any impurity with it. It will just go as pure water molecules. And then when they condense and then when they come back, they have only dissolved gases in them. Like say for example, some carbon dioxide got dissolved. Earlier तो इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं होता था, तो एसिड रेन कभी होता नहीं था। बट अभी पोल्यूशन के जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो गया है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जब अभी बारिश होता है तो ये सारे गैसेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व होकर नीचे आते हैं। अदरवाइज
रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर विच वी कैन फाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Being a good solvent, when it flows on the surface of earth, it dissolves many salts in it. तो क्या आप लोगों को पता है हम लोग क्यों बोलते हैं या फिर हम लोग क्यों मानते हैं माउंटेन वाटर इज द वेरी बेस्ट वाटर इन ऑर्डर टू ड्रिंक? एंड माउंटेन वाटर जो है जनरली बहुत महंगा भी बिकता है। हिमालयन माउंटेन वाटर बोलते हैं। Now, do you understand why is it down from the mountains? It has covered a large distance, kilometers of distance on the rocks, on the what we say soil and other things. So जब ये आता है उस पूरा पाथ में अपने आप में बहुत सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे केमिकल्स उसको डिसॉल्व कर करके आता है। तो वाटर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड एज वेल एज मिनरल्स जो है डिसॉल्व होके आता है, स्पेशली जब वो माउंटेन्स के ऊपर से आता है। माउंटेन वाटर जब माउंटेन के ऊपर से आता है सर, वहां पे कोई सैंड क्ले नहीं रहता है, इट्स सिंपल स्टोन्स। सो स्टोन्स क्या है? मिनरल्स है, सॉल्ट्स है। तो उसके ऊपर से जब वाटर फ्लो होके आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे सॉल्ट्स एंड मिनरल्स लेके आता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही प्योर एंड एंटी ऑक्सीडेंट फॉर्म वाला वाटर होता है। तो काफी यंग रखता है तुमको, तुम्हारे बॉडी को काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है। क्या ये समझ में आ रहा है सर हम लोगों को? Yes, sir. Okay, now let us understand what is our hard water. Presence of calcium and magnesium salts, especially what salts, sir? Calcium and magnesium salts, okay, in the form of hydrogen carbonate, chloride और and sulfate. तो तीन टाइप ऑफ salts है, या तो बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, नहीं तो आप लोगों का सल्फेट्स दैट इज SO4 2 माइनस, नहीं तो आप लोगों का क्लोराइड्स, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। तो हम लोग वाटर को क्या बोलते हैं सर? हार्ड वाटर बोलते हैं। ओके, व्हेन वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स लाइक, याद रखेंगे ये सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट किसके साथ? बाइकार्बोनेट, सल्फेट या फिर क्लोराइड। ये सॉल्ट्स जब रहते हैं then we will call that water as nothing but hard water। और वाटर में जब ये सॉल्ट्स नहीं रहते हैं तो उसे हम लोग सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, और ये वाटर सोप के साथ काफी अच्छा लैथर फॉर्म करता है। बहुत अच्छा बात है, आगे बढ़ते हैं। हार्ड वाटर forms scum or precipitate with soap. Now many a times when we take bath with water at the sink hole, जहां से हमारा पानी ड्रेन होता है, वहां पे सोप लगा के हम लोग नहाने के बाद देखते हैं लेयर ऑफ स्कम फॉर्म होता है, डर्ट पार्टिकल्स के साथ जो है लेयर ऑफ स्कम वहां पे वाइट डिपॉजिट हो जाता है ना। ये क्या है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ड वाटर। एक्चुअली सॉफ्ट वाटर होता तो पूरा इंप्यूरिटीज को अपने आप में वो डिसॉल्व करके ले जाता सोप के साथ, बट हार्ड वाटर के प्रेजेंस की वजह से ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या फिर क्लोराइड के सॉल्ट जो है ये सोप के साथ एक प्रेसिपिटेट बना देते। तो वो जो स्कम है वो सोप का प्रेसिपिटेट है जो कि वहां पे बच जा रहा है, राइट। सो सोप कंटेन्स सोडियम स्टेरेट, ये एक कॉमन फॉर्मूला है सर, सोडियम स्टेरेट दैट इज C17H35 COONA, आप लोगों को पता होना चाहिए। रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर टू फॉर्म और प्रेसिपिटेट कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टेरेट, जिसको कि मैंने स्कम बोला अभी, कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टेरेट जो कि हमारा स्कम है। ओके, तो हमारा कैल्शियम सॉल्ट्स क्या करेंगे? सोडियम को डिस्प्लेस करके दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, देखो C17 था ऑलरेडी बड़ा मॉलिक्यूल, अब ना एक कैल्शियम दो C17 को पकड़ के रखा है, अब ये मॉलिक्यूल कितना बड़ा हो गया? C34, इतना बड़ा हो गया। सो ऑब्वियसली जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा लार्ज मॉलिक्यूलर मास के वजह से। क्या ये बात समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? Yes, sir. दैट मीन्स अगर आप लोग अपना सोप को हार्ड वाटर के प्रेजेंस में यूज करेंगे, हार्ड वाटर के प्रेजेंस में यूज करेंगे अपने सोप के साथ, राइट, सोप एंड हार्ड वाटर अगर यूज करते हैं, हार्ड वाटर में जो आप लोगों का कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स है ना, ये लोग क्या करेंगे? आपका जो स्टेरेट आयन है, स्टेरेट आयन जो है इसके साथ ये लोग प्रेसिपिटेट बनाएंगे, बिकॉज एक कैल्शियम दो स्टेरेट आयन C17H35 COO
इनके साथ जो है दो मॉलिक्यूल्स को ले लेता है, मॉलिक्यूलर मास इतना लार्ज हो जाता है कि वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसी को हम लोगों ने स्कम या प्रेसिपिटेट बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बोल रहा है इट इज देयरफॉर अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री, ऑब्वियस सा बात है, मैं जितना भी सोप यूज करूंगा वो मेरा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को डिसॉल्व करते चला जाएगा, तो मेरा डर्ट पार्टिकल्स कब बाहर निकलेंगे? सो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर्स एज वेल। तो देखिए स्टीम इंजन्स में, स्पेशली रेलवे में यूज होता था पहले, अब तो नहीं होता है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में जो बॉयलर्स रहते हैं, इंडस्ट्रीज में जो बॉयलर्स रहते हैं, इन बॉयलर्स में भी अगर आप लोग बिना ट्रीटमेंट किया हार्ड वाटर अगर डाल दिए, तो वो हार्ड वाटर क्या करेगा, वो बॉयलर में जब हीट होते रहता है थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट होते रहेगा बॉयलर के अलग अलग सरफेस पे, और वो बॉयलर धीरे धीरे कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉयलर जो है जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर जम गया है स्कम का, प्रेसिपिटेट का, तो ये ना इतना इजीली बॉयल भी नहीं होगा। तो दैट मीन्स तुम्हारा बहुत सारा थर्मल एनर्जी जो तुम दे रहे हो बॉयलर को, आधा से ज्यादा पानी को गर्म करने से जगह पे ये हीट देने में या ये हीट में लॉस हो जाएगा, राइट। सो ये भी एक बहुत बड़ा गलत चीज है जो कि हार्ड वाटर से होता है। वो जो डिपॉजिट होता है हमारे बॉयलर पे उसे हम लोग स्केल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्केल। इट फॉर्म्स अ डिपोजिशन विच इज कॉल्ड एज स्केल। ओके, दिस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। मैंने अभी अभी बोला एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हम लोग को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हम लोगों को हीट करने के लिए। नाउ हार्डनेस ऑफ वाटर आर ऑफ टू टाइप्स, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। एदर इट कैन बी योर टेम्परेरी हार्डनेस और योर परमानेंट हार्डनेस। मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ सर आप लोगों को। अगर बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स प्रेजेंट है एज इम्प्यूरिटीज, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, देन ये कॉज करता है आपका टेम्परेरी हार्डनेस। बट वही अगर क्लोराइड या सल्फेट की वजह से अगर हार्डनेस आया है, देन वी विल कॉल इट एज परमानेंट हार्डनेस। क्या ये क्लियर है? हाँ सर। यस, वी विल कॉल इट एज नथिंग बट आर परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस जो है ना सर, उसको सिंपल मेथड से रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसको टेम्परेरी हार्डनेस बोल रहे हैं। दैट मींस यू कैन रिमूव दिस बाइकार्बोनेट सिंपली बाय हीटिंग, ओके, बाय एडिंग सम बेस इनटू इट। वी विल सी हम लोग कैसे इसको रिमूव करते हैं। देखिए बॉइलिंग, ड्यूरिंग बॉइलिंग द soluble magnesium bicarbonate is converted into insoluble magnesium hydroxide। ओके, तो क्या हो जाता है सर, अगर हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस के लिए देखें, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों का, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में जो है आप लोगों का यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में ही आप लोगों का जो है टेम्परेरी हार्डनेस आता है। तो जब आप लोग इसको बॉयल कर देते हैं, जब आप लोग इसको हीट कर देते हैं, बॉयल कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिलीजेस वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिलीजेस, इट डिकम्पोजेस एक्चुअली, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट itself gets converted into magnesium hydroxide and calcium hydroxide respectively। ये हाइड्रोक्साइड्स जो है ये कुछ खास आप लोगों का हार्डनेस को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, दे डू नॉट गिव एनी टाइप ऑफ हार्डनेस। तो इसीलिए बाय सिंपली हीटिंग इट वी कैन सिंपली कन्वर्ट देम इनटू योर सॉफ्ट वाटर। इसीलिए आप लोग पहले हम लोगों के घर में धोबी आते थे, धोबी, तो आप लोग देखेंगे धोबी घाट या फिर जहाँ पे कोई पॉन्ड या रिवर है वहां पे जाके धोबी लोग जो है पानी यूज करके ये लोग क्या करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं। तो आप लोग देखोगे कुछ धोबी क्या करते हैं सर, स्पेशली जब आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे, बड़े बड़े सिटी एंटर करने से जस्ट पहले रेलवे ट्रैक्स के आसपास में ही आप लोगों को ये धोबी घाट दिख जाएंगे। तो वहां पे आप लोग देखोगे पानी बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में जो है ना बॉयल होते रहता है ना। क्यों? ये लोग क्या करते हैं, होटल्स के ब्लैंकेट्स और जो क्विल्ट्स होते हैं करते हैं, तो उतना ज्यादा सॉफ्ट वाटर इनको मिलता नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, हार्ड वाटर को बॉयल करते हैं ताकि कम से कम डिटर्जेंट या फिर डिटर्जेंट तो नहीं बोलूंगा, कम से कम सोप यूज करके ये लोग इसे साफ कर सके। क्या ये समझ में आ रहा है सर? यस सर। सो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का एक और तरीका है जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोगों का क्लार्क्स मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग? अपना क्लार्क्स मेथड बोलते हैं। क्लार्क्स मेथड क्या है सर? इसमें हम लोग एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम डाल देते हैं सर।
तो लाइम मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम। सो हम लोग क्या करेंगे, से फॉर एग्जांपल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम लोग एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, दे विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन के प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म पे बनेंगे। मैग्नीशियम में भी सेम सर, कैल्शियम कार्बोनेट चला जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटेड विथ योर लाइम will give us calcium carbonate, along with that it will give us magnesium hydroxide, and along with that it will give us water. These are very, very important reactions. So we studied about the temporary hardness, we studied all the properties of our water, that is your structure of ice, chemical properties of water. इसमें से hydrolysis of water and as well as hydrate formation of water बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आप लोग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग यहां तक अच्छे से आज पढ़ लीजिए, रेस्ट इवनिंग को हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेंगे अगर टाइम मिला तो। ठीक है सर, सिर्फ हम लोगों को परमानेंट हार्डनेस एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये खत्म करने के बाद जो है हम लोग सीधा सीधा हम लोगों का क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया है सर। हाँ सर। Very good. So that will be it for now. We will meet again in the evening. Till then, have fun, sir. चलिए, bye bye.